Hello everyone, today we are going to start the ray optics part 1. Reflection is omitted from the syllabus. Refraction is in the syllabus now. तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमें बेसिकली आज पढ़ना है स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या? अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट शिफ्ट, अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट शिफ्ट lenses, intro and some introduction of combination of lenses. In this video we will try to cover these topics. इस वीडियो में हमें ये टॉपिक कवर करने हैं. तो स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं बच्चे. But before starting this topic at home, you must go through the image formation by mirror and lenses which you have done in the 10th class. ठीक है, जैसे इमेज फॉर्मेशन होते थे लेंस और मिरर के, वो आप एक बार पहले कर लेना. स्नेल्स लॉ देखिए बच्चे, all of you are well aware when the light go from denser to rarer medium. ऑप्टिकली डेंसर का मतलब होता है जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये म्यू1 है, तो म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है. When the light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. While its reverse is also true, that when the light is going from rarer to denser medium, मतलब medium of less refractive index to the medium of more refractive index, then it bends towards the normal. In optically denser medium, the speed of light is less. In optically denser medium, speed of light is less. जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उतनी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कम हो जाती है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चे, वी कैन से दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि म्यू2 ऑप्टिकली डेंसर है, म्यू1 रेयर है. And now I am saying that the light is going from the denser to rarer medium, then it will bend away from the normal. This is the angle of incidence, this is angle of refraction. So, and if the light is going from the optically rarer to the optically denser medium, this is the rarer, this is the denser medium. When the light is going from the rarer to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. So, बच्चे, this is a general thing that mu is inversely proportional to the speed of light. So mu2 by mu1 is equal to c1 by c2 होगा. mu2 by mu1 किसके इक्वल होगा बच्चे? c1 by c2 के. It will be equal to lambda 1 by lambda 2. It will be equal to lambda 1 by lambda 2. Wavelength of light in the first medium, यहाँ पर speed of light c1, wavelength lambda 1, speed of light c2, wavelength lambda 2. तो it is equal to lambda 1 by lambda 2. But keep it in mind, when the light enters from one medium to another, then two physical quantities remain unchanged. When the light enters from one medium to another, then two physical quantities remain unchanged. First, frequency. Frequency in both the medium remains same, and energy of photon, energy of light is equal to h नहीं होता है. frequency same है तो h same है. He can ask you in the question that when the light is going from the optically denser to optically rarer medium, when the light is going from optically denser to optically rarer medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. ठीक है, यहाँ पे when the light is entering from denser to rarer medium, its speed increases. Rarer medium में speed ज्यादा होती है. Does it violate the law of conservation of energy? No. Speed बढ़ गई तो क्या, लेकिन energy उतनी है. Energy is h nu. Energy is still the same. ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता था इसमें? स्नेल्स लॉ कहता था mu2 by mu1 is equal to, देखिए mu2 नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके सामने दूसरे वाले मीडियम का एंगल आएगा sin r by sin i. sin r by sin i होना जरूरी नहीं है. आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि mu2 by mu1 is always equal to sin i by sin r, but it's not mandatory. तो mu2 यहाँ पर आप देखेंगे तो mu2 के सामने वाले मीडियम में एंगल कितना है? i. So here you can say that mu2 by mu1 is equal to sin i by sin r. This is the what is Snell's law. This is what is called Snell's law. ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस भी आ सकता है बच्चे. देखिए sin 0 कितना होता है? 0.
इज इक्वल टू tan 0 भी 0 होता है। तो हम कह सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स sin theta is nearly equal to theta is nearly equal to tan theta. This concept is going to be used very much in this chapter. Second topic is apparent depth and apparent shift. Apparent depth and apparent shift is same with that you have done in the 10th class कि when a coin is placed in the water तो वो थोड़ा ऊपर रेज नजर आता है। when you place a pencil in the water it appear to be slightly tilted। तो कितना, अब हमें उसका फॉर्मूला भी निकालना है। देखिए heading is apparent depth apparent shift। this is the actual depth, capital H is the actual depth। this medium has refractive index mu। लाइट यहां से थी, सपोज ये पॉइंट P था कॉइन, denser to rarer light went straight। now here denser to rarer light went away from the normal। so this is the angle of incidence, this is the angle of refraction। you can assume that one has mu1 and mu has mu2। so this point P because of the refraction will appear at P1। ठीक है, तो कैपिटल H is the actual depth, capital H is the actual depth। this AP in the figure, AP is the actual depth and AP1 is let it to be small h, let it to be small h। this small h is apparent depth, this is small h is apparent depth। actual depth तो h है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि वो P की में ना होके P1 पॉइंट पर है, मुझे नजर आ रहा है वो P पे ना होके P1 पॉइंट पर है। so I have to find this value of small h। this is I, ऑल्टरनेट से ये वाला भी I हो जाएगा। इफ दिस एंगल इज R देन कॉरेस्पॉन्डिंग से ये वाला एंगल भी R हो जाएगा। सो mu2 by mu1 is equal to sin R by sin I। mu2 के अपोजिट वाले मीडियम एंगल कितना है R। लेट दिस पॉइंट टू बी sin R by sin I। as we have done just before that for small angle sin theta is nearly equal to tan theta is nearly equal to theta। so for small angle sin R is nearly equal to tan R and sin I is nearly equal to tan I। so you can put it as mu2 by mu1 is equal to tan R by tan I। tan R by tan R, tan R कितना हो जाएगा AB अपॉन AP1 इनटू में tan I कितना हो जाएगा AB अपॉन AP। AP is capital H। from the figure you can see that AP is capital H, AP1 is small h। so from here you can see that mu2 by mu1 is equal to capital H by small h। small h is capital H mu1 by mu2। this is formula I want to try। ये फॉर्मूला ही मुझे निकालना था अपेरेंट डेप्थ का। ठीक है, शिफ्ट, भाई शिफ्ट P से P1 चला के ये शिफ्ट है, तो शिफ्ट कितना आ जाएगा बच्चे PP1। ये कितना हो जाएगा PP1 कितना होगा फिगर से AP माइनस AP1, AP माइनस AP1। AP कितना है बच्चे कैपिटल H mu1 AP कितना था H, AP1 कितना है स्मॉल h, H माइनस H mu1 by mu2 कैपिटल H 1 माइनस mu1 by mu2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अपेरेंट शिफ्ट। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेंसेज। बच्चे देखिए दो ये है बायफोकल लेंसेज, मतलब जिनमें दो तरफ फोकस होता है। आपने बचपन में पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस में एक फोकस इधर होता है एक फोकस इधर होता है, तो दीज आर कॉल्ड द बायफोकल लेंसेज। तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, दिस इज प्लानो कॉन्वेक्स। इसका ये वाला सरफेस बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट है, स्लिम।
दिस इज द प्लानो कॉन्वेक्स, दिस इज प्लानो कॉनकेव, ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव एंड ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, नॉट टू वरी अबाउट दैट। लेकिन कोई सा भी लेंस से दो, देखो अगर मैं लेंस वर्सेस मिरर में डिस्टिंग्विश करता हूं, लेंस वर्सेस मिरर में, देखिए बच्चे लेंस फॉर्मूला फॉलो करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, मिरर फॉर्मूला, इसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, ये फॉलो करते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, इसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर मैग्निफिकेशन v/u होती है, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू hi/ho। यहां पर मैग्निफिकेशन माइनस v/u होती है, इज इक्वल टू hi/ho। दोनों ही केसेस में एक बात कॉमन होती है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब रियल इमेज है। इसका मतलब क्या होता है? रियल इमेज। मिरर में f इजिकल टू r/2 वैलिड होता है, चाहे प्लेन हो चाहे कोई भी स्फेरिकल हो, ठीक है, चाहे प्लेन हो चाहे कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, मिरर में f इजिकल टू r/2 इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है। लेकिन जो लेंस होते हैं इसमें f इजिकल टू r/2 वैलिड नहीं होता, ठीक है। मिरर में ठीक है, लेंसेज में f इजिकल टू r/2 वैलिड नहीं होता, मिरर में वैलिड होता है। नाउ इसका फोकल लेंथ फिक्स होता है, मतलब डोंट चेंज विद कलर, डोंट चेंज विद कलर ऑफ लाइट एंड मीडियम। इसका क्या मतलब है? ये चेंज करता है। कलर ऑफ लाइट का मतलब है कि अगर मैंने ब्लू कलर को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है मिरर का, तो रेड से करूं चाहे येलो से करूं उसका फोकल लेंथ 20 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसका फोकल लेंथ चेंज होगा, कैसे होगा? वो धीरे धीरे आगे आएगा। सिमिलरली मैंने मिरर को एयर में रखा, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था, पानी में डूबे तो भी 20 रहेगा, इसका चेंज हो जाएगा। लेंसेज की फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, लेंसेज की फोकल लेंथ चेंज होती है बड़ी जल्दी, लेकिन मिरर की फोकल लेंथ कुछ हो जाए सेम रहती है। इसके बाद आता है बच्चे साइन कन्वेंशन, कब कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी चाहिए, कब कौन सी चीज नेगेटिव लेनी चाहिए। देखिए बच्चे साइन कन्वेंशन, और हाइट, अब प्रिंसिपल एक्सिस हाइट को पॉजिटिव लेते हैं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हाइट को नेगेटिव लेते हैं। हाइट में अब प्रिंसिपल एक्सिस हाइट पॉजिटिव लेते हैं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हाइट नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट डिस्टेंस इज नेगेटिव। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि क्वेश्चन है, देयर द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड
मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज लेट वी ड्रॉ द रे डायग्राम। An object is length, focal length, it has two focus, f to f, f1 to f1. Object is placed at 30 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जो लाइट सीधी गई फोकस से पास, the light which passes through optic center passes straight without deviation. So here you can see that a magnified image is formed. Here you can see that magnified image is formed. हो सकता है आपको रे डायग्राम तो हमने पहले पढ़े हैं, ऑब्वियसली मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि कैसे बनते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? Which focus I am using? F पर I am using the f1 focus. तो ये देखो इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है, मैं ऑप्टिक सेंटर से मूव कर रहा हूं f1 के लिए राइट की तरफ, ऑप्टिक सेंटर से f1 के लिए कहां जाऊं? राइट। तो क्या लिखा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। तो यहां पर जो डिस्टेंस है यानी कि फोकल लेंथ होगी f, वो प्लस 20 हो जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मुझे ऑब्जेक्ट जाना है तो इंसिडेंट लाइट तो आगे जा रही थी, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, इंसिडेंट लाइट के उल्टा। तो u कैसा लूंगा मैं? -30, -30 है ना। और v कुछ भी हो वैल्यू तो जो भी आएगी, लेकिन मुझे पता है इमेज यहां बनी है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ही जाना पड़ेगा, तो v भी यहां पर पॉजिटिव ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो चाहे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है बच्चे? पॉजिटिव, पॉजिटिव मुझे मतलब मुझे निकालना है, वैल्यू नहीं पता। u इज -30, फोकल लेंथ इज +20, तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ v। 1/v is equal to 1/20 minus 1/30, LCM is 60, 3 minus 2, v comes to be of 60 centimeter if my calculation is correct। मैग्निफिकेशन होता है v by u, लेकिन सारी वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर दी है, तो v का वैल्यू आप देख सकते हो पॉजिटिव है +60 एंड you can see that it is -30, ठीक है। तो -2 माइनस, मैंने आपको बताया क्या बताता है? रियल इमेज। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसका मतलब होता है यू कैन सी रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज? देखिए बच्चे, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल, रियल इमेज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, जैसे यहां पर हो रहा था, लाइक इसका एग्जांपल हो गया ये, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। while virtual image is found when light appear to meet on producing backward, found when light appear to meet on producing backward, found when light appear to meet on producing backward, on producing backward, ठीक है। तो आप देखिए बच्चे, सपोज आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, तो क्या होगा? जो लाइट सीधी जाएगी वो फोकस के पास, जो ऑप्टिक सेंटर जाएगी, अब ये कभी नहीं मिलेंगी। सो आई हैव टू प्रोड्यूस देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर आपकी जो इमेज बनेगी, जो बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इमेज बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसे तो बच्चे मैं आपकी क्लास 5 मिनट स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट बाद रहना। हाँ, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि स्कूल के लिए। देखिए बच्चे, इसके बाद आता है हाँ, देखिए बच्चे, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है, यू कैन से प्रूफ ऑफ लेंस फॉर्मूला। प्रूफ ऑफ लेंस फॉर्मूला, मुझे लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो बच्चे, लेंस फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आपको दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने होते हैं। दिस इज द ऑप्टिक सेंटर, दिस इज द फोकस, ऑब्जेक्ट ए, लाइट, हमने कोई भी केस ले सकता हूं मैं, ऑब्जेक्ट, आई कैन प्लेस ऑब्जेक्ट एनीवेयर। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि
ऑब्जेक्ट मैंने ओ और एफ के बीच में रखा हुआ है, कोई भी केस ले सकते हो, यू कैन प्लेस ऑब्जेक्ट एनीवेयर। लाइट सीधी निकल गई, जो ऑप्टिक सेंटर से जाती है वह, नाउ यू कैन सी दैट इट इज अ डाइवर्जेंट बीम, सो इट विल फॉर्म द वर्चुअल इमेज ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, इट विल फॉर्म द वर्चुअल इमेज ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड। जरूरी है टू पे बने, कहीं भी बन सकती है, A1 B1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एम इज टू आइडेंटिफाई टू पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आपको दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बनाने हैं, लेट दिस पॉइंट टू बी P एंड जॉइन OP। तो यू कैन सी इन ट्रायंगल ABO and triangle ABO and triangle A1B1O, you can see angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree, angle 3 is common, angle 3 is common, दोनों में आ रहा है बच्चे। तो you can see that triangle ABO is similar to triangle A1B1O। सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो प्रॉपर्टी क्या होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, AB अपॉन A1B1 इज इक्वल टू BO अपॉन B1O। BO कितना है बच्चे, BO इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन इंसिडेंट लाइट ऐसे है, मुझे ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, U के लिए भी ऐसे जाना है, इमेज के लिए भी ऐसे जाना है, तो U और V नेगेटिव, लेकिन फोकस के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। एज आई एम यूजिंग F1, तो जहां पर मुझे OF1 पुट करना है वहां पर प्लस F, जहां पर OB पुट करना है माइनस U, जहां पर OB1 पुट करना है वहां पर माइनस V। तो BO का वैल्यू माइनस U और इसका वैल्यू माइनस V, इट इज इक्वल टू U। सेकेंड पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल POF1, in triangle POF1 and triangle A1B1F1, ये वाला, this triangle and this larger one. Again, angle 2 is equal to angle 4, each 90 degree, angle 5 is equal to angle 5 common, so these triangles are also common. Triangle POF1 is similar to triangle A1B1F। अगेन तो PO अपॉन में A1B1 किसके बराबर हो जाएगा, OF1 अपॉन में B1F। यू कैन सी इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PO। बच्चे आप देख सकते हो फिगर में PO का वैल्यू AB के इक्वल है, आप फिगर में देख सकते हो PO इज इक्वल टू AB, तो आपने PO की जगह AB पुट कर दिया, तो AB अपॉन में A1B1 इज इक्वल टू OF1। OF1 बच्चे देखो अभी मैंने बताया 44 फोकल लेंथ है। What can you write to B1F? B1F is this distance. B1F1 sorry. B1F1 is this distance. ठीक है, POF1 and B1 A1 B1 F1, ठीक है। तो बच्चे B1F1 is this distance, ये हो जाएगा B1O प्लस OF1। F अपॉन में B1O कितना है बच्चे, माइनस V प्लस OF1 इज F। अब देखो आपने दो तरीके से AB अपॉन A1 B1 की वैल्यू निकाली, एक फर्स्ट में एक सेकंड में। इक्वेट 1 and 2, 1 और 2 को आप इक्वेट कर दीजिए। इफ यू इक्वेट 1 and 2 देन यू विल गेट U by V इज इक्वल टू F by माइनस V प्लस F, माइनस VU प्लस FU इज इक्वल टू VF, ठीक है। डिवाइड बाय UVF, डिवाइड बाय UVF, क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड बाय UVF करेंगे तो माइनस 1 बाय F बचेगा प्लस 1 बाय V बचेगा इज इक्वल टू 1 बाय U। यही मेरा लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं दो की पॉइंट, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में दोनों की पॉइंट आपको यूज कनेक्ट करके दिखाऊंगा। दो की पॉइंट आपको याद रखना है, दो की पॉइंट आपको याद रखना है। की पॉइंट 1, की पॉइंट 1 कहता है कि पहले चीज अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें हैं तो इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड एंड की पॉइंट 2, इसका मतलब क्या है मैं भी समझाऊंगा कि व्हाइल ट्रेसिंग द पाथ, अगर आपको पाथ ट्रेस करना है you first calculate V, you first find
वी कैसे फाइंड करना है, वो फॉर्मूला थे, वो भी हम अभी सीखेंगे। ठीक है, अगर वी पॉजिटिव होता है तो ऐसा होगा कि ये कोई चीज है, इससे टकरा के लाइट, अगर वी पॉजिटिव आ रहा है तो लाइट नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। अगर वी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है लाइट अगर ऐसे जा रही होगी तो और ऐसे मुड़ जाएगी, दैट इज इट विल फॉर्म इमेज ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड। ठीक है, मतलब डाइवर्जेंट बन जाएगी। अगर वी पॉजिटिव आता है तो कन्वर्ज करती है, वी नेगेटिव आएगा तो वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और वी अगर इन्फिनिटी आता है तो लाइट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस द की पॉइंट 2। वी अगर इन्फिनिटी आता है तो लाइट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन में यूज करते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ द एनसीईआरटी कि लेट सपोज देयर आर 3 lenses, L1 of focal length 10 centimeter, it is a plano-convex length of focal length minus 10 centimeter, and it is a convex length of focal length 10 centimeter. The distance between L1 and L2 is suppose 5 centimeter and L2 and L3 is 10 centimeter. ठीक है, you have to find the position of image of object placed at 30 centimeter from the L1. Find position of image of object. तो बच्चे आपने ऑब्जेक्ट से एक लाइट भेजा, आगे कुछ मत ड्रॉ करो। अभी सेकेंड पॉइंट कहता है आगे कुछ मत करो, पहले वी फाइंड करो। ठीक है, तो फॉर L1 आपने लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया 1 by v minus 1 by u इक्वल 1 by f। इस फॉर्मूले में v तो मुझे पता नहीं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो +10, तो क्या अभी बताया कॉन्वेक्स लेंस हम राइट वाला फोकस यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, तो u का वैल्यू -30 आप पुट कर दीजिए, 1 by v minus 1 by u का वैल्यू -30, 1 by f का वैल्यू 10। यहां से v आएगा सॉल्व करके 15 सेंटीमीटर। देखो यहां से 15 सेंटीमीटर दूर में कहां पहुंचूंगा, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब लाइट नीचे की तरफ जाएगी, 5 और 10 मैं पहुंचूंगा C3 पर। C3 में पहुंचने से पहले ही L2 आ गया, इसलिए मैंने आगे की लाइन को डॉटेड कर दिया। मुझे पहुंचना C3 था, लेकिन C3 में पहुंचने से पहले ही C2 आ गया, तो अब L2 आ गया। अब L2 को पढ़ो। अब इसमें की पॉइंट 1 देखो, इमेज फाउंड बाय फर्स्ट इज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड, मतलब जो L1 ने इमेज बनाई है, भैया बनाई है या बनाता, एक ही बात है, बनाई है या बनाता, वो दूसरे यानी कि L2 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो L2 विल टेक द इमेज फाउंड बाय L1 एज ऑब्जेक्ट। तो L1 ने इमेज कहां बनाई है, C3 पर। इमेज बाय L1 इज एट C3, तो फॉर L2 ऑब्जेक्ट इज एट C3। समझ आ रही है बात, यही कंसेप्ट है बस, कि पहले ने जो इमेज बनाई वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसके लिए आप देखो लाइट, इंसिडेंट लाइट तो ऐसे ही जा रही थी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी आ गई है। इसके लिए तो L2 लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसके लिए U पॉजिटिव होगा। ऑप्टिक सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 10। ठीक है, तो यहां पर U हो जाएगा +10। फोकल लेंथ आपको -10 दे रखी है, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, 1 by v minus 1 by 10 is equal to 1 by -10, ये कट जाएगा, 1 by v is equal to 0, v is equal to 1 by 0 is equal to infinity। v infinity यानी कि लाइट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट यहां से पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, अब आप L3 को देखो, अब आप किसको देखो, L3 को। जो L2 ने इमेज बनाई है वो L3 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो L3 विल टेक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये U को इंफिनिटी लेके चलेगा। 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f is equal to फोकल लेंथ कितनी थी, 10। तो यहां पर क्या बचेगा, 1 by v minus 1 by infinity is equal to 1 by 10। तो v आ गया आपका 10, क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 10 और 0, तो यहां पर आपकी 10 सेंटीमीटर के इधर इमेज बन जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके।